ਰੱਟ ਖੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। You can confirm then that the information about, for example, the Indian Home Affairs Minister and his alleged involvement in these crimes in Canada, that was not released in Canada, however. Can you confirm that? That was only released in the Washington Post, pardon me. The journalist called me and asked me if it was that person. I confirmed it was that person. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਫੋਨ ਟੈਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਟੈਪ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। Consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. By citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Wing any home minister or pinpointing towards any home minister and without any proof, and you just want the votes of the Sikh diaspora from Canada, तो आप इस तरह के इल्जाम या उनके फोन टैपिंग या उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डालना, दिस इज नॉट करेक्ट। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮਾਰਿਸਨ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। मेरी ख्याल से पाकिस्तान की जगह वो कनाडा ने ले ली। हम तो बहुत कनाडा के लिए बहुत मन में
भारत के, हिंदुस्तान के और पंजाब के खास तौर पे बहुत ज़्यादा उनके लिए मन में हमारे भावना जो थी वो प्रेम की थी। अब पता नहीं क्या ट्रूडो साहब के मन में आ गया है, कल तो हद ही कर दी। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं समझता हूं जिनकी देख रेख में हमारा देश सुरक्षित है और देश पाकिस्तान जैसे जो रोज हमला करते थे वो आज तीर जैसे सीधे हुए हैं और आप उनको टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है भी जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो सब शिफ्ट कनाडा में कर गए हैं। कनाडा को वो कमजोर भारत नहीं समझना चाहिए, अब ये विकसित भारत है और हर तरह जिस प्राप्त हमारे पास गांधी जी का देश है, प्यार के से आप प्यार जानते हैं करना। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा फिर टिट फॉर टैट करना भी हम जानते हैं। भारत और कनाडा की बात है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगा है हमारे ऊपर। उन्होंने कहा कि ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये मिला हुआ है भारत सरकार के साथ, इसका स्पष्टीकरण भारत सरकार को देना चाहिए। लोगों के मन में इसको लेके दुविधा है कि क्या ये सत्य है कि नहीं है, क्योंकि मूसेवाले का मर्डर एक रहस्य बना हुआ है। बाबा सदीकी मारे गए हैं, हजारों और लोग मारे गए हैं। शरेआम एक व्यक्ति जेल में बैठा वारदात को अंजाम दे देता है, यह संभव कैसे है? वो इंटरव्यू दे देता है। तो ये लोगों में मन में धीरे धीरे शंका होती बढ़ती जा रही है। और अब जब कनाडा गवर्नमेंट ने कहा है तो लोगों को लगता है यार कोई तो बात है। तो मेरे को लगता है भारत सरकार को इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। 100% इससे हमारे रिलेशन का नुकसान होगा। आधा पंजाब तो कनाडा में बैठा है, हमारे बच्चे कनाडा में बैठे हैं, हमारे परिवार कनाडा में बैठे हैं। अगर संबंध बिगड़ जाएंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। हम भारत सरकार के निवासी हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं, हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के तिरंगे को प्यार करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है संबंध हमें ठीक रखने चाहिए। ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ। कार्रवाई चल रही है भारतीय दूतावास के अधिकारियों के खिलाफ, वो बिल्कुल जो कूटनीति के जो एक परंपरा है उसके खिलाफ है। और इस तरीके की चीज़ आप जो आपके यहाँ पर राजदूत होते हैं उनके खिलाफ आप इस तरीके की चीज़ नहीं करते। लेकिन कनाडा ना सिर्फ कर रहा है लेकिन उनको जता भी रहा है कि हम ये कर रहे हैं आपके साथ। तो एक लिहाज से वो सारी जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन कर रहा है। अब भारत की तरफ से प्रोटेस्ट तो ज़रूर उस पर आपत्ति तो ज़रूर जाहिर की गई है और ये भी कहा गया है कि इसके नतीजे जो होंगे वो काफ़ी संजीदा होंगे। लेकिन इशू ये है कि क्या कनाडा सिर्फ आपकी इस बयान से कन्विंस हो जाएगा और इससे गुरेज करेगा या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि जिस हालात में अब कनाडा आ गया है वो इस तरीके की कोई चीज़ करेगा, वो इस पर डबल डाउन करेगा। जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसने कैनेडियन ऑफिसर को बुला करके दिया है। जो लेटर दिया है बेसिकली उसको डिमाश कहते हैं। मैं समझता हूं कि डिमाश जो दिया है, एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता क्योंकि अखबारों में नहीं आई है, पर मैं समझता हूं जो भी डिमाश दिया है इट वॉज वेरी पोलाइट। अगर एक कंट्री जो है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का वॉयलेशन करती है और जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जिनके पास पूरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ होती है, उसके पहले हमारे कुछ डिप्लोमेट्स को पीएनजी कर देते हैं, पर्सन नॉन ग्रेटा कर देते हैं, और बाकी कुछ जो है उनके ऊपर सर्विलेंस करनी शुरू कर दी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है चाहे दूसरी किस्म की सर्विलेंस है। इट्स अ मैटर ऑफ शेम। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके लिए ये बहुत ही बड़ा उसका वॉयलेशन है। इसमें तो मैं समझता हूँ जितना स्ट्रांगली वर्डेड डिमांड